Hello dear students, myself Ashish Sharma, your physics teacher, and in this video I am going to start with the last unit of your 11th physics, that is oscillations and waves. Today we will discuss the video lecture related to your oscillations, that is first chapter 10a, and your second chapter is 10b, which we will follow after this. So the few topics for starting which I have shortlisted, we are going to discuss them one by one in this lecture. So first of all, we are having the concept of periodic motion. The first point, periodic motion is motion which we observe in our daily life. It is not very rare. We observe periodic motion in so many things. Like if you will look at the ceiling fan, it's rotating. One particular blade of fan is coming at the same position again and again. That is an example of periodic motion. Motion of the hands of clock is an example of periodic motion. Motion of earth around itself is an example of periodic motion. Similarly, motion of earth around sun is also an example of periodic motion. So periodic motion is you can observe periodic motion at so many places. And what is the condition for a motion to be periodic? Is that it repeats itself after a fixed time interval. Like earth completes one revolution around sun in 1 year. Earth completes one rotation about its own axis in 24 hours. Moon completes one rotation around earth in 27.3 days. So there is a time period which is related with every periodic motion. A periodic motion is a motion which repeats itself after a fixed time interval, and that time interval is known as time period of that periodic motion. Okay, so periodic motion and time period, they both are related. What is the next point? Next point is frequency of motion. Now I will consider some examples along with this. Suppose I am having a fan which has revolutions like 800 revolutions per minute. Any fan, it may be rotor of glider plane, it may be ceiling fan, it is having 800 revolutions per minute. So very simple, 800 full revolutions, or we also consider them as cycles, are taking place in 1 minute, that is 60 seconds. There is always time associated when you are explaining any periodic motion, how much revolutions or cycles are done in given time. We can always calculate the time period very easily, like 800 cycles are there in 60 seconds. So 800 divided by 60 cycles in 1 second. Okay, so 800 divided by 60, or I can say 40 by 3. 40 by 3 complete cycles are taking place in 1 second. So that is the frequency. How many complete revolutions or complete cycles are taking place in unit time is known as frequency. So 40 by 3 cycles per second is the frequency. There is one interesting thing to note between frequency and time period, that frequency and time period are inverse of each other. So like I calculated the frequency 40 by 3 cycles per second, and the unit of frequency is hertz. So 1 cycle per second means 1 hertz, 2 cycle per second means 2 hertz. So similarly 40 by 3 cycle per second means 40 by 3 hertz. तो हर्ट्स जो डायमेंशनली अगर देखा जाए तो सेकंड इनवर्स के ही इक्वल होती है, ठीक है। अगर इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग nu is equal to 1 by t, or I can write t is equal to 1 by nu, where t is time period and nu is frequency.
तो हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे 1/ν, जो हमारी आ जाएगी 3/40 सेकेंड्स। तो ये 3/40 सेकेंड जो आया, ये आपका एक साइकिल का टाइम पीरियड आ गया। अब अगर आप एक साइकिल के टाइम पीरियड को 3/40 से मल्टीप्लाई 800 साइकिल्स को एक साइकिल के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 800 साइकिल्स का टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 800 into 3/40 I will get 60 seconds. So this is very important relation, that frequency and time periods are inversely proportional to, even inversely equal to inverse of frequency. Time is equal to inverse of frequency and frequency is equal to inverse of time. Let me give one more very simple example with a lesser numerical value so that you can understand this relation better. Let us take a smaller value like 4 revolutions per second, and let us take it per second. Okay, let it be per minute, no worries. So 4 revolutions are taking place in 1 minute, and let us say time period of one rotation is capital T. So 4 rotation, it means 4 into a time period of one revolution is equal to 1 minute, that is 60 seconds. So time period is automatically 60 divided by 4, that is 15 seconds, which is quite simple to understand. अगर 15 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो 60 सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट होंगे, 15 15 30 15 45 और 15 60। तो आपके एक मिनट में 4 साइकिल कंप्लीट हुए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एक सेकंड में कितने साइकिल हुए तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सेकंड के अंदर आपके मिनिमम 1 या ग्रेटर देन 1 साइकिल कंप्लीट होने ही चाहिए। कोई चीज बहुत स्लो भी रोटेट कर सकती है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि 60 सेकंड में 4 रिवोल्यूशन पूरे हुए हैं, एक रिवोल्यूशन 15 सेकंड में पूरा हुआ है, एक रिवोल्यूशन 15 सेकंड में पूरा हुआ है। तो एक सेकंड में वो कितना रिवोल्यूशन पूरा हुआ होगा, उसका 15वां हिस्सा 1/15 टाइम, तभी तो 15 सेकंड में उसका पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ 15 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ होगा, एक साइकिल का 1/15 टाइम। तो अगर आप इनवर्स ले लेंगे टाइम पीरियड का तो आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/15 साइकिल्स और रिवोल्यूशंस पर सेकंड, जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो 1/15 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ साइकिल से मतलब है एक सर्कल कंप्लीट होने में। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करेंगे तो 0 से π/2 पाई एंड देन 3π/2 सॉरी 2π/3 एंड देन 2π। ठीक है, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का कंप्लीट साइकिल। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहां पे। लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग एंड वन मास m इज अटैच्ड टू इट्स वन एंड। अगर आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस या स्ट्रेच करके रिलीज कर देंगे तो इट विल आल्सो अंडरगो अ पेरियोडिक मोशन, जिसमें ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम लेट अस से -a से और राइट एक्सट्रीम लेट अस से +a तक ये जाएगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो जो एम्पलीट्यूड है वो आपका लेफ्ट साइड को नेगेटिव और राइट साइड को पॉजिटिव, -a से +a। और ये जो इसकी पोजीशन है, अगर मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर करूं और इधर मैं x एक्सिस कंसीडर करूं और यहाँ में -x एक्सिस और इसे मैं ओरिजिन कंसीडर करूं, तो जो पोजीशन है मेरे मास की, ये पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि at which time what will be the position of this mass m, even though we know that this position can be between -a and +a only. So let us say time period for the oscillation for this system is 4 seconds. तो 4 सेकंड में जो सिस्टम है ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो साइकिल कंप्लीट कैसे माना जाएगा ये समझना बड़ा जरूरी है।
लेट अस से कि अगर ये आपका मास इस वाले पॉइंट से मूव करता है और ये राइट एक्सट्रीम तक जाता है, और राइट एक्सट्रीम तक जाने में इसने ये टाइम लेगा t/4 इसके टोटल टाइम पीरियड का 1/4 टाइम। फिर यहां से ये आपका वापस आएगा मेन पोजीशन पे। अभी हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब ये पहले मेन पोजीशन पे था तो इसका मोशन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ था। फिर ये वापस मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन पे आके इट विल कंटिन्यू टू इट्स मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जाके ये फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। और इस हर एक पॉइंट्स के बीच में जो मैंने डिस्कस किए, यहाँ से लाइक ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट करें तो ओरिजिन से प्लस ए जाने तक ये t/4 टाइम लेगा, प्लस ए से वापस जीरो तक आने में ये t/4 टाइम लेगा, फिर जीरो से माइनस ए तक जाने में ये फिर t/4 टाइम लेगा, और फिर माइनस ए से वापस जीरो आने में ये फिर t/4 टाइम लेगा। तो इस तरीके से अगर आप इन चारों टाइम्स को ऐड करेंगे तो आपको t मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो मैंने 4 सेकंड इसीलिए लिया है जान के, ताकि ये 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो 4 सेकंड इसलिए मैंने कंसीडर किया कि इट विल कंप्लीट इट्स साइकिल इन 4 स्टेप्स जो 1 सेकंड ईच के होंगे, और इसका जो कंप्लीट साइकिल है वो आपका 4 सेकंड्स का हो जाएगा। अब आप बात समझो, यहाँ पे ये वाली इन सब की जो वैल्यू है ये मैंने आपको बता दी कि ये 1 सेकंड है, क्योंकि हमने कैपिटल T 4 सेकंड कंसीडर कर लिया है, तो t/4 हमारे पास 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है अगर आप एक रिस्ट वॉच ऑन करें या कोई भी एक स्टॉप वॉच ऑन करें, उसमें आप देखेंगे कि t0 पे अगर आप इसकी पोजीशन देखें, हमारा जो स्मॉल t है वो यहाँ पे टाइम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल T है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो पार्टिकल अंडर मोशन के कंप्लीट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, वो आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम की, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन की। पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं y से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल t से। तो जब आपका टाइम 0 था तो हमने अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो हमारी जो पोजीशन थी वो हमारी पोजीशन थी, हम यहाँ पे x लिखते हैं क्योंकि हमने x एक्सिस लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। तो हमारी पोजीशन थी +a, सॉरी जब टाइम 0 था तो पोजीशन थी 0, टाइम 0 पे पार्टिकल 0 पे है। फिर जब हमारा टाइम बीता 1 सेकंड तो हमारी जो पोजीशन है वो क्या थी, वो पोजीशन थी हमारी +a, जो हमारा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है मास वो +a वाले पॉइंट पे था। फिर 1 सेकंड और बीता, 2 सेकंड बीत गए, पार्टिकल वापस 0 पे आ गया। फिर हमारा 1 सेकंड और बीता, 3 सेकंड बीत गए, पार्टिकल आ गया हमारा -a पे। और फिर हमारा 1 सेकंड और बीता, 4 सेकंड पूरे हुए, और हमारा पार्टिकल वापस से आ गया ओरिजिन पे। तो ये टेबल आपको सिंपल दिखा रही है द पार्टिकल, द मास विच इज लोडेड विद स्प्रिंग, वन एंड इज फिक्स्ड, सो दिस मास इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो यहां से आने में 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, आधा टाइम पीरियड हो गया, फिर 1 सेकंड, 3/4 टाइम पीरियड हो गया, फिर 1 सेकंड, कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया। तो कंप्लीट टाइम पीरियड में इसका एक साइकिल ऐसे ऐसे और ऐसे कंप्लीट हो गया। तो यहां तक तो बहुत आसान है कि हमने सिर्फ 4 एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर हमने अपने पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट कर ली। बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ टाइम इन बिटवीन द टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम 0 to a, सेंटर से इस एंड तक पहुंचने के बीच में जो 1 सेकंड है, उस 1 सेकंड के किसी भी बीच की वैल्यू पे, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ सेकंड पे, 1/3 सेकंड पे, मुझे 2/3 सेकंड पे अगर मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो पोजीशन कैसे मिलेगी? क्या इस पार्टिकल की पोजीशन हाफ सेकंड पे a/2 होगी? कोई जरूरी नहीं है। क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो हाफ होएगी जो इसकी वेलोसिटी यहां थी? कोई जरूरी नहीं है। अभी हम किसी भी चीज के बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अभी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी नहीं पढ़ी है। इस काम के लिए हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आप इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपके सिलेबस में है, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो पीरियोडिक मोशन आपका वो मोशन है जिसके अंदर मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो वो पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एसएचएम की बात करें जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है टू एंड फ्रो।
कोई साइकिल उसके अंदर बने जरूरी नहीं है। आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो मतलब लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक, टू एंड फ्रो आपका मोशन जो होता है तो वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यानी कि सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पेरियोडिक तो होता ही होता है डेफिनेटली, लेकिन सारे पेरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक हो ये कोई होना जरूरी नहीं है। जैसे अर्थ का मोशन अराउंड अर्थ इटसेल्फ इज पेरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक, अर्थ का मोशन अराउंड सन इज पेरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ पेरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक। तो हर एक हार्मोनिक मोशन पेरियोडिक जरूर होगा, लेकिन हर एक पेरियोडिक मोशन हार्मोनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कौन से मैथमेटिकल फंक्शन है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे कॉमन फंक्शन जो आप यूज करेंगे वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी पर्टिकुलरली साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, दे आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन दोनों को ही हम साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। हम साइन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, हम साइन को क्यों चूज किया हमने पेरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि अगर आप साइन का ग्राफ देखेंगे तो आप साइन के ग्राफ में देखेंगे कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे हमारे सिंपल ये वाले ऑसिलेटरी मोशन में मास की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे? ये देखो, जब आपका ये टाइम एक्सिस है हमारी, ठीक है, यहां तक में हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। 4 सेकंड तक इस ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं ऐसे। हाँ, तो ये देखो, ये आपका यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड है, जो हमने 4 सेकंड लिया हुआ था। अब इसके हम 4 हिस्से करें तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी t/4, ये वाली वैल्यू आ जाएगी टी की t/2, और फिर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी टी की 3t/4, और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास टी की आ जाएगी इक्वल टू कैपिटल टी। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो फिर t/4 ऐड हो जाएगा, तो ये 5t/4 हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला आपका 3t/4 ये आपका हो जाएगा कितना, 3/2t हो जाएगा, फिर ये है ना 6t/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे चलेगा। बट आप यहाँ पे नोट करें कि अगर ये मान लो आपका +x है और ये आपका -x है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखो किस तरीके से अगर हम देखें और अगर हम इस साइन का एम्पलीट्यूड ग्राफ का a कंसीडर करें और इसके नेगेटिव वाले का जो एम्पलीट्यूड है अगर हम वो -a कंसीडर करें, तो आप देखोगे किस तरीके से ये आपका जो साइन का ग्राफ है जिसका एम्पलीट्यूड a है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल व्हिच वाज अंडर SHM, ठीक है। तो t0 पे आपका जो मास है वो 0 पे था, तो साइन में भी अगर आप देखो t0 पे तो हमारी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड यानी कि t/4 टाइम, t/4 टाइम पे हमारा पार्टिकल +a पे था, ये हमारा t/4 टाइम है, तो हमारा सॉरी जो पार्टिकल है वो 1 सेकंड पे है, +a पे है। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, कंप्लीट टाइम पीरियड 4 सेकंड जो हमने कंसीडर किया। तो t 1 सेकंड पे पार्टिकल +a पे है, t 1 सेकंड पे पार्टिकल +a पे है। फिर जब 2 सेकंड पूरे हुए पार्टिकल फिर मीन पोजीशन पे आ गया, जब 2 सेकंड पूरे हुए तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया, यानी कि वापस 0 पे आ गया, ये हमारे पास 0 है। और इसके बाद जब 3 सेकंड हुए तो पार्टिकल -a में पहुंच गया, तो जब 3 सेकंड हुए पार्टिकल -a पे हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट था हमारा, जब हमारे 4 सेकंड पूरे होंगे तो पार्टिकल हमारा वापस ओरिजिन पे आ जाएगा, तो जब हमारे 4 सेकंड पूरे हुए तो पार्टिकल हमारा वापस ओरिजिन पे आ गया, और इसके बाद फिर सेम साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से साइकिल रिपीट नहीं होता आधे से, जब ये मेन पोजीशन पे आया, देखो जब ये यहां मेन पोजीशन पे आया तो इसकी 1 सेकंड के बाद वैल्यू -a थी, जबकि इसकी 1 सेकंड पहले वैल्यू +a थी, इसीलिए हम यहाँ पे साइकिल को कंप्लीट नहीं मानते। साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है जाके इधर आके वापस आने के बाद। तो इससे क्या होगा कि अब अगर आप देखो कि यहां से अगर मैं 1 सेकंड आगे ले जाऊं तो मेरी प्लस वैल्यू थी, और यहां से भी मैं अगर 1 सेकंड आगे ले जाऊं तो मेरी वैल्यू +a थी, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में और इसके बाद फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा।
तो इसलिए इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में कितने साइकिल आए आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ये हमारा कंप्लीट साइकिल है यहां से लेके यहां तक का, तो 2 सेकंड में हमारा हाफ साइकिल आया और 1 सेकंड में हमारा t/4 यानी कि 1/4 साइकिल आया। तो इसीलिए अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 1/4 हर्ट्ज। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/t 1/4 यानी कि 0.25 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस ग्राफ को इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा। तो अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में देखें तो मैं x को डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं लिखता हूं तो मैंने a एम्पलीट्यूड लिया मेरे साइनोसॉइडल फंक्शन का a sin, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं ओमेगा t से, वेयर माय t इज वेरिएबल, जो डिफरेंट वैल्यू में t की स्मॉल t की पुट करूंगा, एंड दिस इज द फंक्शन व्हिच वी यूज। वी कैन आल्सो यूज cos ओमेगा t, आई विल शो यू लेटर इन एग्जांपल्स। तो आप इससे भी टैली कर सकते हैं, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x 0 आपका क्या आएगा, ये आपका x ऑफ 0 है, ये t 0 पे, ये आपका x 1 सेकंड पे यानी कि t/4 पे, ये आपका जो x है ये t/2 पे, ये जो आपका x है ये है आपका 3t/4 पे, और ये आपका x है कंप्लीट t पे जो वापस सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप t 0 पुट करेंगे t की जगह तो आपके पास x की वैल्यू 0 आएगी। So this equation is satisfying with this table and this is satisfying with this graph, क्योंकि ये इसी ग्राफ की इक्वेशन है और इसी को हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यूज करेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ओमेगा, एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज आवर एंगुलर वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? तो अभी अभी आप लोगों ने जैसे सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा रिलेशन v और ओमेगा r के बीच में। एक्सक्यूज मी, दिस इज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने ओमेगा को सर्कुलर मोशन में एज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा होगा ना, v आपकी लिनियर वेलोसिटी और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम जो ओमेगा सिंबल है उसको हम यूज करते हैं एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपने अभी जैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t दैट इज 0.25 हर्ट्ज। ऐसे ही जो आपकी ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं हम? ओमेगा इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। व्हाई 2 पाई टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी? क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ, सर्कल के रोटेशन का कितना पार्ट। तो जैसे इसमें आपके सर्कल के रोटेशन का 1/4 कंप्लीट हुआ, और हमें पता है सर्कल के रोटेशन का 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर उस 90 डिग्री को मैं रेडियंस में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मुझे पता है कि कंप्लीट सर्कल के रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं कंप्लीट सर्कल के रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल के जो 2 पाई रेडियन है, वो रेडियन की टर्म्स में अगर मैं देखूं तो मेरा कितना रेडियन कवर हो गया, तो मेरा π/2 रेडियन कवर हो गया। हमें पता है π/2 जो है वो 90 डिग्री होता है। इसीलिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेडियंस पर सेकंड कितना कवर हो रहा है। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता हूं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसकी कैलकुलेट करता हूं तो 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 0.25 या फिर 1/4। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये भी हमारे को एक सेंस में यही बता रही है कि कितना सर्कल का पोर्शन आपका एक सेकंड में कवर हो गया। अगर आपका एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो आपके पूरे 2 पाई रेडियन कवर हो गए। तो आप उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो बोल सकते हैं 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड, लेकिन आप उसको ओमेगा की टर्म में क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो 2 पाई रेडियन आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जब आप न्यू 1 करेंगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि ओमेगा की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है, हर्ट्ज, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज का मतलब आपका एक सेकंड में 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। एक सेकंड में 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब आपने एंगल कितना कवर किया, ये पूरा देखो, वो π/2 पाई और फिर वापस 2 पाई, फिर 3 पाई और फिर 4 पाई।
तो आपने 2 बार 2 पाई कवर किया, यानी कि 4 पाई आपने कवर किया कितनी देर में, 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में आपने 2 साइकिल कंप्लीट किए, तो अगर आपकी 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो आपकी ओमेगा कितनी हो जाएगी, 8 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो जब आप ओमेगा को एज 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आप सेम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप सेम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी और इनटू में स्मॉल टी। तो ये दोनों ही जो रिप्रेजेंटेशन है ये मेरी किसकी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं आपको इसका एक एग्जांपल पुट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप अगर एक्स टी के अंदर आप स्मॉल टी की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाया था कि कैपिटल टी की वैल्यू अगर मैं 4 सेकंड लेता हूँ और स्मॉल टी और एक्स के बीच में मैंने ग्राफ बनाया था कि 0, 1, 2, 3 और 4 सेकंड्स पे जो मेरी पोजीशन है वो क्या होंगी, वो मेरी पोजीशंस होंगी 0 और +a और 0 और -a और फिर 0। तो यही पोजीशन मेरा ये ग्राफ भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप इसमें एक्स टी की वैल्यू पुट करेंगे और a साइन 2 पाई टी बाय टी, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो a साइन 2 पाई बाय टी इंटू में 0, तो साइन 0 होता है, 0 आ गया। दूसरी वाली पुट करेंगे x इज इक्वल टू, इस बार आपने पुट की t बाय 4, मैं इन टर्म्स ऑफ t पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू। तो अगर मेरा t 4 सेकंड है तो ये वाली वैल्यू मेरी 0 है, ये वैल्यू मेरी t बाय 4 है, ये वैल्यू मेरी t बाय 2 है, ये वाली वैल्यू मेरी 3t बाय 4 है और ये वाली वैल्यू मेरी कैपिटल T इटसेल्फ। तो ये मेरी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइम की और ये मेरी टाइम की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T। ठीक है, तो जब हमने t की वैल्यू t बाय 4 पुट की तो a साइन 2 पाई बाय t एंड स्मॉल t की वैल्यू आपने पुट की t बाय 4, तो t से t कैंसल, 2 2 जा 4, साइन पाई बाय 2, साइन 90 मेरा 1 होता है मेरा x आ गया a। ऐसे ही जब आप पुट करोगे इसकी वैल्यू t बाय 2 तो आपके पास आ जाएगा a साइन 2 पाई बाय t इंटू t बाय 2, t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन 180 अगेन 0 होता है तो मेरा वापस 0 आ जाएगा। और जब मैं फोर्थ फाइनली इसकी वैल्यू 3 t बाय 4 पुट करूंगा तो a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T और स्मॉल t की जगह मैं पुट करूंगा 3t बाय 4, t से t कैंसल, 2 2 जा 4, मेरा दोबारा से साइन की जो वैल्यू है वो आ गई 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू जो है आपकी -1 होती है, तो -1 इंटू a जब आप करेंगे तो -a आ जाएगा आपके पास। तो ये सारी वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ गई। और फाइनली जब आप दोबारा से x की वैल्यू t पुट करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो x 0 पे आई थी, a साइन 2 पाई बाय t और इनटू में आपने कंप्लीट t पुट किया तो t से t कैंसिल हो गया और आपके पास वापस से 0 वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यही 4 वैल्यूज तो हमने ग्राफिकल मेथड से भी वेरीफाई कर ली थी, फिर इसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखने का क्या फायदा हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखने का ये फायदा हुआ इसको कि नाउ यू आर नॉट बाउंड टू गेट द वैल्यूज एट दीज 4 डिविजन्स ओनली। अब आप कैपिटल T का t बाय 4, t बाय 2, 3t बाय 4 और t पे ही नहीं, आप इनके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप स्मॉल t की जगह t बाय 8 भी लिख दोगे तो भी आप अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से 0 से लेके t के बीच में कोई भी आप वैल्यू स्मॉल t की पुट करेंगे तो आप उसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रैक्टिस दिस, गो थ्रू दिस रिलेशन, अंडरस्टैंड द टर्म्स कैपिटल T, ओमेगा, स्मॉल t, a, और इन सब को अगर आप समझ लेते हो तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाने वाला है।
तो आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले, और उसमें फिर हम SHM को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।